Okay, so we are starting with our unit 3. So today's topic is organizing. Uh, so these are vision of institution and mission of our institution. So these are the vision of Department of Mechanical Engineering and the mission of Department of Mechanical Engineering. So next is learning outcomes. So learning outcomes of the subject. So in which we are studying with our learning outcome number 2, identification of problem associated with function of management and organizing. So today our topic is organizing. So these are the contents of today's lecture. So which is about organizing, the definition, process of organization, importance of organizing, what is the importance, and what are the principle for this process, what is requirement, what is it all about, everything. So first we start with this picture. In this picture we can see, in our part, in above picture there are two pictures. In above picture there are many people who we can compare it as a any industry or any organization. There are number of people who will work for the company. So if we see that there is some alphabet written on the each person's t-shirt, so they are standing here and there, uh, something we can say in random manner. So if what is organizing, if we arrange all the people according to their role of work and the requirement of their, according to the place where they have to work, then it is called organize uh, thing, organizing. So in second picture you can see that uh, someone has asked them to stand in a particular manner with a particular distance, so that they can provide a uh, specific word which can actually mean. So that is organize. So हम देख सकते हैं कि लिखा तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज ही था, बट यू कांट फाइंड इट और यू कांट अंडरस्टैंड इट व्हाट इज एक्चुअली रिटन. सो हमने किया क्या, उनको एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया, किसका काम क्या है, किसको कहाँ रहना है, किसको किसके साथ अटैच होना है. ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर वे में इसको अरेंज किया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज मतलब वही है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, बट इन द मैनर ऑफ इन इंडस्ट्री और एन organization, it has number of meaning, number of principle. According to that the manager has to do जो second function of management, that is important function is, that is organizing. So first introduction, or we can say definition. So organization, what actually organizing mean? So organizing mean identifying and the grouping different activity in the organization and bringing together the physical and the financial and human resource to establish the most productive relation for the achievement of organizational goal. तो हम क्या कहेंगे, आप के पास अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप ये ढूंढिए कि हमें क्या क्या वर्क करने हैं, और जो वो वर्क हैं उनका ग्रुप बनाना है कि कौन कौन सा वर्क किसके साथ अटैच है, और फिर उसके अंदर सब उसमें फिजिकल इनपुट, फाइनेंशियल इनपुट, प्लस जो भी ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वॉल्व है, उनको इस तरीके से बनाना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो सके. सो जो टारगेट है, टारगेट अचीव हो सके. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शन
ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज प्लानिंग। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो मैनेजमेंट था वो प्लानिंग था। तो सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। सो आफ्टर प्लानिंग कि व्हाट वी हैव टू डू, तब हम उसको अरेंज करते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज आ गई, हमारे पास प्लान आ गया कि हमें ये करना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। सो इट इज ए फंक्शन इन विच द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल, ये जो ऊपर है वही बात है। So all three are responsible. So if we talk about definition with any particular person or industrial list, so according to Chester Bernard, organization is function by which the concern is प्रिंस। हम्म, यार क्या तरीका है ये? क्या? क्या तरीका है ये? मैं क्या जानू भाई, तू ही पूछ। तो ये अपनी क्लास में कोरोना किसको हो गया? हाँ यार, अपने पास में 2 बच्चों को कोरोना हुआ है यार, ऐसे कौन है? रिजवान को तो नहीं हुआ, रिजवान गायब भी काफी टाइम से। हाँ, रिजवान हो सकता है ये। पर दारू पीता है रिजवान, तो पौवा 5 रुपये पौवा है वो, तो उसको नहीं हो 5 रुपए सकता। वाला। फिर कौन है यार? इतनी सस्ती प्याज तो फिर मर ही नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ नहाने, सर आया तो बुला लेना। सात्विक, सात्विक हो सकता है, सात्विक तो नहीं है। सात्विक का तो उसकी मेरे से आवाज ज्यादा भी दर नहीं हो आ रही गया। सर। पहाड़ों में घूम रहे हो तो। वादियों में। ये कौन ज्वाइन हुआ है? इसको तो नहीं हुआ, ज्वाइन हुआ है। क्या नाम है इसका? कौन हुआ है अभी ये? श्रृंगी। क्या? ये नाम है? ऋतिक श्रृंगी नाम है हाँ, ना। ऋत्विक। हाँ, मैं श्रृंगी ऋत्विक, क्या नाम ऋत्विक। था? अरे विपुल। अरे विपुल, कल की रेस देखी क्या? हाँ भाई, विपुल देखी। विपुल। अरे भाई साहब, बोल क्या मोहित गजब रेस चौधरी। आई थी। अरे मेरे अटेंडेंस लगवा दिया यार, मैं वहां पे उधर जा रहा हूँ किसी काम से, तेरे को पता ना। कहाँ ठीक पे? है, ठीक है, ठीक है। नहीं, कहाँ जा रहा है तू? वैसे तो ऐसे मैं क्लास क्लास में छोड़ ही हूँ, के? पर निकल लूँ तो लगा दिया। सर आ गए बेटा। सो गुड मॉर्निंग सर। सर आ गए, बट सर की आवाज नहीं आ रही सर।
सर ऐसा लग रहा है। कौन सी स्लाइड के ऊपर वो हो गया था? कोई बता सकते हैं क्या चल रहा था? हेलो? सर ऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या चल रहा था? जो स्लाइड शो हो रही है ये चल रही थी या और कोई थी? हेलो? कोई तो बोलो, क्लास में थे भी कि नहीं? ओके, चलो मैं वापस से थोड़ा शुरू कर देता हूँ, तो जल्दी से बता देता हूँ। कुछ यस या नो कुछ तो रिप्लाई कर दिया करो। यस सर। हाँ, तो कहाँ पर क्या चल रहा था, मैंने क्या बता दिया था? बोलो नवीन, कनन। जो अभी आपने स्लाइड दिखाई ना वही चल रही थी सर, फर्स्ट वाली तो आपने बता दी थी स्लाइड। नहीं, ये जो पिक्चर वाली है इसके बारे में बता दिया था। यस सर। ओके, और डेफिनेशन? नो सर। ओके, ओके। सो इंट्रोडक्शन चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग का। तो जैसे हमने इस पिक्चर में बात की थी कि ये सब जो ऊपर वाली पिक्चर में पर्सन्स हैं, ये सब एक रैंडम मैनर में कहीं खड़े हुए हैं। सो जो भी एक पर्सन आए उसने इनको बोला एक पर्टिकुलर मैनर में खड़े करने के लिए, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। अनलेस अदरवाइज ये क्या थे, सब रैंडम थे, इधर उधर थे, किसी को अपनी कोई पोजीशन नहीं पता थी, किसका किससे क्या रिलेशन है उसको कुछ नहीं पता था। सो दिस थिंग इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। Okay, so introduction. So these are some basic definition. So first one is organizing mean is identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical and financial human resource to establish the most productive relation for achievement of organization and goal. तो इसमें करना क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में? सबसे पहले हमें एक्टिविटी ढूंढनी होती है, क्या क्या एक्टिविटी हैं। अगर उनमें से कुछ एक्टिविटी अगर ग्रुप उनका अगर बन जाए तो उनको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, और देन जो भी है उसके अंदर फिजिकल जो भी रिक्वायरमेंट है लाइक मशीन्स ये एक्सेट्रा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हैं उन सबको मिला करके एक वर्क करते हैं जिससे कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल मिलता है। सेकंड वन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which follows planning. So first function of management is our planning. So planning के बाद जो चीज आती है नेक्स्ट, वो आती है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो इसके अंदर क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन है जो हमने ऊपर बात की, ये फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की, इन सबको एक पर्टिकुलर मैनर में सिंक्रोनाइज करके कंबाइन करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाली पिक्चर में देखा कि ये इतने सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क थे, इनको की एक सिंक्रोनाइजेशन में अगर हमने लगाया तो समथिंग हमें मीनिंगफुल मिला, यानी कि कुछ ऐसा आउटपुट मिला विच कैन बी डिजायर्ड और एनीथिंग। ओके, सो तीन तरीके के जो रिसोर्सेज है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज ए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बार्नard, like organizing is a function by which the concern is able to define the role position, the jobs related and the coordination between authority and responsibility. Okay, so hence a manager always has to organize in order to get result. ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो फंक्शन है एक मैनेजर का, उसको हर चीजों को ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा टू गेट ए रिजल्ट। सो वो कैसे मैनेजर करेगा, सो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, सो दीज आर दी टास्क that should be performed by a manager. So it
is categorized in 4 major steps. So first one is identification of activity. So after planning हमें क्या करना है, हमें टास्क पता होगा, तो उस टास्क के अंदर हमें जो भी पर्सन है सबसे पहले उसको all the activities which have to be performed in a concern have to be identified first. So first thing first, उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट आर दी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा. लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं, अकाउंट्स प्रिपरेशन, सेल्स करना, रिकॉर्ड रखना, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल, तो ये सब चीजें. अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपने जैसे कोई एक्टिविटी ली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, सो इसके अंदर भी हम सब यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्लासीफाई कर सकते हैं सब यूनिट्स. लाइक अकाउंट्स का क्या होगा कि सैलरीज का अलग डिपार्टमेंट होगा, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके लिए अलग से लोग काम करेंगे, या जिस तरीके से अलग अलग तरीके से हम डिपार्टमेंट उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो एक्टिविटी जैसे मिक्स हो जाए. जैसे मान लो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट है, तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट में हम ये बोले कि हमें सेल्स का अकाउंट से अलग से मेंटेन करना है, वो एक एक्टिविटी है. तो वो जो मेकिंग सेल्स वाला है, अगर उन दोनों को हम ग्रुप भी कर सकते हैं कि जो सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या होगा, जो अकाउंट बनेगा वो भी सेल्स में ही बनेगा, तो मेकिंग सेल्स के अंदर जो अकाउंट का जो एक हिस्सा है वो जुड़ सकता है, ठीक है. तो इसी तरीके से ये जो है कंबाइंड हो सकता है. और सेकंड वन, डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज दी एक्टिविटी. सो जो अब आपने क्या किया, ये जो ऊपर एक्टिविटी थी इनको क्लब कर लिया, अकॉर्डिंग टू दीज एक्टिविटी आप उसको डिपार्टमेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि कौन सा जो वर्क है, कौन सी एक्टिविटी किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. सो द मैनेजर ट्राइज टू कंबाइन एंड ग्रुप सिमिलर एंड रिलेटेड एक्टिविटी इनटू यूनिट्स और डिपार्टमेंट. तो अगर कोई एक जैसा काम है, जैसे कि मान लो रिकॉर्ड कीपिंग है, सो रिकॉर्ड कीपिंग इज ए एक्टिविटी, बट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये भी अकाउंट सेक्शन में होगा, और जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी किसी पर्टिकुलर अकाउंट सेक्शन में होगा. सो दिस कैन बी ग्रुप्ड like record keeping and preparation of account. These two activity might be combined, and the department should be account departments. So एक department में दो activity हो सकती हैं, so these activity can be grouped. Likewise might be quality control and sales can be merged or can not be merged. It is according to the organization, ठीक है. So the organization of dividing the whole concerned into independent units and department is called, जो ये हम कर रहे हैं इसको बनाना, this is called departmentalization. कि आपने उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. तो हम ये अपने आसपास ऐसा इधर उधर देखते हैं, जो भी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो ये वाली चीज पहले से परफॉर्म करते ही हैं. अगर मान लो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर ज्यादा है, नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, तो वो लोग पहले से इन चीजों को जो है फॉलो करते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज उसको क्या करना है, अब आपको हर डिपार्टमेंट से कोई एक बंदा चूज करना है जो कि अथॉरिटी है. ओके, सो वंस द डिपार्टमेंट आर मेड, द मैनेजर लाइक्स टू क्लासिफाई द पावर्स एंड एक्सटेंड्स टू द मैनेजर. तो आपको वहां पर क्या करना है, एक बंदा है उसको चार्ज देना है, उसकी पावर्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी लिमिट्स हैं, ये सब करना है, ठीक है. दिस एक्टिविटी ऑफ ए गिविंग ए रैंक टू ऑर्डर टू मैनेजर कौशल इज कॉल्ड हायरार्की. तो अब इसमें क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में आपने कोई सीनियर बनाया, फिर उसके नीचे किसी को हम कुछ एक्टिविटी देंगे, और फिर उसके ऊपर वाला भी कोई पर्सन वो किसको रिपोर्ट करेगा. तो ये जो एक बनता है कि कौन किसके बाद क्या करेगा, कौन किसके बाद क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड हायरार्की. ये हम देखेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके की हायरार्की होती हैं, उस पर हम कैसे वर्क करते हैं. So the top management is into the formulation of policies. जो policies बनेगी वो top management में बनेगी. Middle level management into departmental supervision. जो middle level की management है, जैसे कि head of the departments या particular head of the production unit, वो supervision करेंगे. Then lower level management into supervision of foreman. So like जो engineers हैं, जो designers हैं, वो क्या करेंगे, वो जो वर्कर हैं काम करने वाले, वो उनको सुपरवाइज करेंगे, वो उनका ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट थिंग क्या है, अब जब आपने ये सब कर दिया, हर कोई ना कोई किसी ना किसी से को सुपरवाइज कर रहा है, सो ही इज ए अथॉरिटी.
ठीक है, लेकिन आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो अथॉरिटी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, या जैसे ये फोरमैन है, फोरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको क्या क्या वर्क करने हैं और ये किस पर्सन के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इसके लिए ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस किस को ऑर्डर देने के लिए ऑथोराइज्ड है। सो इस चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो रिलेशनशिप शुड बी इन वेरियस ग्रुप फॉर स्मूथ इंटरेक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि उसकी अथॉरिटी क्या है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये जो मैनेजर्स हैं, ये जो एक मैनेजर है वो डिफाइन करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है। तो जो ये हमने ये पीछे चारों वर्क देखे, ये एक मैनेजर को काम करना है, ये काम करने के लिए वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, जो प्रोसेस बेसिकली इन्हीं से डिराइव्ड है। तो जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वही चीजें रिपीट हैं, बट हम देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिटेलिंग है। सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि काम क्या करना है, अब उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। ठीक है, और वो जो एक हिस्सा होगा पर्टिकुलर स्मॉलर यूनिट, उसको बोलते हैं जॉब। ये आपको ये पर्टिकुलर जॉब है, ये आपका करना है। ठीक है, so one individual is assigned only one job according to his capability and qualification. So try यही करना है कि एक पर्सन को एक ही वर्क मिले, एक ही जॉब मिले। so इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग जो वर्क है वो एक सिस्टमेटिक होगा, प्लस एक ही पर्सन अगर एक ही वर्क को बार बार करता रहेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। सो धीरे धीरे क्या गलती जो होने के चांसेस हैं वो कम रहेंगे। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आपने काम बांट दिया है मैनेजेबल यूनिट्स में, और तो जो भी जॉब्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए उनको एक ग्रुप में बना सकते हैं और उसको एक हम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो दो तरीके से डिपार्टमेंट बनते हैं, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शनल, एक अकॉर्डिंग टू डिविजनल। तो डिविजनल में तो क्या होता है कि एक बड़ा सारा, जैसे हम करते हैं कि लाइक ये क्या है, जैसे डिवीजन है, सपोज कि प्रोडक्शन की डिवीजन है। ठीक है, फंक्शनल में क्या करते हैं कि जो फंक्शन के अकॉर्डिंग है, सेम टाइप ऑफ फंक्शन इन ए डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो किसका क्या काम है ईच डिपार्टमेंट को, और वहां पर किसी एक पर्सन को उसका इंचार्ज बनाना है, तो जो भी उस अकॉर्डिंग के वर्क के लिए सुटेबल हो। ठीक है, देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो आपने ड्यूटीज डिफाइन की हैं, किसी की क्या ड्यूटी है तो आपने अथॉरिटी डिफाइन कर दी, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है। सो उसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर साइनिंग द ड्यूटीज ऑल इंडिविजुअल मस्ट आल्सो बी असाइंड मैचिंग अथॉरिटी। जिसको आपने काम दिया है उसके ऊपर आपको एक अथॉरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, जिस अथॉरिटी को वो जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसको रिपोर्ट करेगा। सो द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो इससे बन जाता है, तो ए मैनेजरियल हायरार्की इज क्रिएटेड वेयर एवरीवन नोज who has to take order from and whom he is accountable। तो जब हायरार्की बन जाएगी तो पता रहेगा कि किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं। ठीक है, सो दीज आर दिस फंक्शन। सो जो मैनेजर काम कर रहा है वो या जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पोर्टेंट। So this is the importance of organizing. So first thing first is coordination। तो हमें अगर कोई भी काम करना है किसी में भी और वहां पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो हमें कुछ अचीव करने के लिए क्या जरूरी होगा, वो सारे के सारे मिल के काम करें, दे शुड बी कोऑर्डिनेटेड। सो ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन ऑफ क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ
इंटरप्राइजेस। तो जो भी इंटरप्राइज है उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पोजीशंस एंड एंश्योर द म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स। तो सब लोगों को पता होना चाहिए किसका किससे क्या रिलेशन है बिटवीन ईच पोजीशन। सो हार्मोनी ऑफ वर्क is brought by higher level managers exercising their authority and interconnected activities of lower level of manager। तो जो काम को जो पर्टिकुलर वे में चलाना है हार्मोनी में, तो उसके लिए हायर लेवल का जो मैनेजर है उसको वर्क करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग जरूरी होगी। सो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग दी job position, so the roles be performed by different managers are clarified, so specialization is achieved through the division of work, this all leads to efficient and effective administration। तो हर पर्सन को उसका पर्टिकुलर काम पता है, इसको क्या करना है, क्या उसका रोल है, तो वो स्पेशलाइज्ड भी है। तो इससे क्या होगा, अगर सबका क्लियर कट सबको पता है तो वो पर्टिकुलर वे में वर्क करेंगे, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अगर मान लो आपके पास आज कुछ भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी जो कंपनी है, जो इंटरप्राइजेज है, उसको एक्सपैंड करना चाहते हो या उसमें ग्रोथ करना चाहते हो, तो या तो क्या है, दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो रिसोर्सेज को ऐड ऑन करो, या दूसरा क्या कर सकते हो कि जो आपके पास रिसोर्स आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है? हाँ सर। कितनी देर से नहीं आ रही थी? बस अभी सर 15 सेकंड के लिए मान लो बस। अच्छा, सो जो स्लाइड मतलब एक्सपांशन एंड ग्रोथ से नहीं आ रही थी? हाँ सर। ओके, सो एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अगर मान लो आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास, मतलब हर किसी कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर आपको एक्सपैंड करना है अपने आप को, आपको ग्रोथ मार्केट में शो करनी है, तो ऑर्गेनाइजिंग विल ऑल्सो हेल्प यू। लाइक कैसे, आपके पास कोई एक पर्सन है, दो पर्सन है जिनको आपने अलग अलग काम दे रखे हैं, लेकिन वो इंटर रिलेटेड है और बहुत छोटे छोटे काम है, तो आप उनको ग्रुप कर सकते हो उन वर्क को और किसी एक पर्सन को दे सकते हो, तो आपके पास एक पर्सन जो है वो फ्री हो जाएगा। सो उस तरीके से हमारे पास क्या होगा, रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वी कैन एक्सपैंड अवर वर्क। सो द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको यूज करेंगे, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिपार्टमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, चैलेंजेस को इजीली मीट कर जाएंगे और जो भी है हम एक्सपैंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सो इसमें क्या होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी में अगर हर पर्सन को उसका एक्चुअल काम पता है, क्या करना है, उसका जॉब रोल, उसका जॉब पोजीशन, इसके साथ उसको क्या मैनेज करना है, तो उसके लिए भी क्या होगा, एक सिक्योरिटी जैसा रहेगा कि भाई हाँ मेरे से कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे को यही काम करने हैं, तो मेरे को ये पर्टिकुलर पता है, तो मैं पर्टिकुलर वे में करूंगा, सो आई विल बी सेफ। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन, the assigned role to every managers are clear, so coordination is possible, so clarity of power helps automatically in increasing mental satisfaction and thereby sense of security and concern। so ये एक job satisfaction में जो है वो most important point है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कोप ऑफ न्यू चेंजेस।
where the roles and activities to be performed are clear, every person gets independence in his work. This provides enough space to manager to develop his talent and flourish his knowledge. तो अगर मान लो कोई पर्सन है, उसको अपने पर्टिकुलर तरीके का काम दे रखा है, वो उसके अंदर स्पेशलाइज है, तो हम क्या करेगा, वो अपना टैलेंट को मतलब मैनेज कर सकता है कि कैसे वर्क को फास्ट करना है, कैसे स्मार्ट तरीके से करना है, और वो अपनी पर्टिकुलर नॉलेज को गेन कर सकता है उस एरिया में जो, ठीक है. सो मैनेजर गेट्स रेडी फॉर टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन विच कैन बी रोड और पाथ टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आपने एक ही पर्सन को कोई काम दिया है, वो मैनेजर एक तरीके से है, तो वो देख सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो डिसीजन लेने में उसको इधर उधर के ज़्यादा काम नहीं है, उसको पर्टिकुलर एक ही वे में सोचना है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, क्योंकि पूरा अथोराइज्ड वो ही है, तो वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी है वो सोच सकता है. So the scope of bringing new changes into running an enterprise is possibly only through of a set organization. अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है, तो क्या हो जाएगा कि वो जो न्यू चेंजेस का जो स्कोप है वो आ नहीं पाएगा. ठीक है. क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो ये जैसे हमने बात की, हर किसी को पता है किससे ऑर्डर लेना है, किससे नहीं लेना है, तो उस चीज के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये हेल्प करता ही है मैन मटेरियल प्रॉपर करने के लिए. तो जो भी प्रॉपर जिसको भी दिया हुआ वर्क, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो जो आपका रिसोर्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, जिससे क्या होगा, सो मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो कोई भी जो रिसोर्स है वो वेस्ट नहीं होगा. एडॉप्शन टू चेंज, तो हायरार्की है, किसी को कुछ लगता है कुछ चेंज करना है, कहीं पर कोई चेंज करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर चेंज हो जाएगा. उससे क्या है कि सब कुछ पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा, सब क्लैरिफाइड है, प्रॉपर है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे जो चेंज करना है उसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा. अदरवाइज अनस्ट्रक्चर्ड वे में या अनऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होगा कि अगर वो जो चेंज एक जगह हम ला रहे हैं, वो चेंज क्या करेगा, पूरे होल सिस्टम को चेंज करेगा, तो एडॉप्शन ऑफ जो चेंज है वो मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब अगर आपका वर्क सब प्रॉपर तरीके से होगा ही, तो हमें पता ही कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें इफेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अब क्या होगा, आपने हर किसी पर्सन को अपना एक काम दे रखा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, तो उसका अपना खुद का डेवलपमेंट होगा. ठीक है. डेवलपमेंट इन द सेंस कैसा होगा, जब उसको पता है, उसको जब वो काम करेगा तो उसको नए नए तरीके पता चलेंगे कि कैसे इसको काम को करना है. पर्टिकुलर वे में वो क्या हो सकता है कि अगर वो उसी पर्टिकुलर काम करेगा तो उसके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे. ठीक है. नए आइडियाज आएंगे, जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उससे compete करने के लिए वो अपने नए आइडियाज को बताएगा, तो उससे जो है पर्टिकुलर उस पर्सन को भी बेनिफिट होगा और एट लास्ट जो कंपनी की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या प्रिंसिपल हैं कि बेसिकली क्या हमें जरूरत है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, ये तो होना ही चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज, यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना हो, जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, या वर्क ऑफ मैनेजर हो, अगर किसी को किसी पॉइंट में कुछ पूछना हो. हेलो. नो सर. Okay. So principle of organizing. So principle of first thing is principle of specialization. तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी काम हम जो डिवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल, जो काम हम दे रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी पर्सन को दिया जाए जो उसके लिए क्वालिफाई हो या उसके अंदर वो स्किल्स या एबिलिटी हो. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द होल वर्क ऑफ ए कंसर्न शुड बी डिवाइडेड अमंग द सबऑर्डिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज एंड स्किल्स.
it is through division of work, it is possible through division of work specialization can be achieved which results in effective organization. तो जो भी वर्क के लिए स्पेशल है उसको उसका काम बांटेंगे तो ही हम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। So according to this principle, all the functions in a concern should be completely and clearly defined to the managers and subordinate. तो जो भी काम करना है, क्या उसका वर्क है, क्या उसके फंक्शंस हैं इस डिपार्टमेंट के, उसमें जो भी मैनेजर और सबऑर्डिनेट हैं हर किसी को मतलब बताना जरूरी है। दिस कैन कैसे होगा ये आपको इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो फंक्शनल डेफिनेशन का प्रिंसिपल है। This can be done by clearly defining the duties, responsibility, authorities, relationship of people towards each other. तो सबको अगर properly define करेंगे तो authority having जो भी है clarification in authority, responsibility, relationship help in achieving coordination and thereby organization can take place effectively. तो इस तरीके से अगर सबको हमने define कर दिया so that is good. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ये क्या है, इसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो भी एक मैनेजर है, जो प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल और सुपरविजन, इसमें क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि जो एक मैनेजर है वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल। कि जो एक मैनेजर है उसके अंदर कितने पर्सन्स आ रहे हैं जो कि उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, सो वो उसका स्पान ऑफ कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्पान ऑफ कंट्रोल इज ए स्पान ऑफ सुपरविजन विच डिपिक्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट कैन बी हैंडल और कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय ए सिंगल मैनेजर, कि एक आदमी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिकली दो तरीके के स्पान ऑफ कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, या तो एक वाइड स्पान होगा या नैरो स्पान होगा। कि वाइड का मतलब ये होगा कि एक जो मैनेजर्स है वो बहुत ज्यादा लोगों को या एक बड़े ग्रुप को मैनेज कर रहा है, और नैरो स्पान में क्या होता है, नैरो स्पान में ये होता है कि जो एक मैनेजर है वो 2 या 3 पर्सन और लगभग 5 लोगों को वो सुपरवाइज कर रहा है। तो अब इनके क्या है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि वाइड हमें कहाँ चाहिए, वाइड के क्या बेनिफिट हैं, नैरो स्पान हमें किस तरीके का जो वर्क है वहां पर हमें नैरो स्पान चाहिए, क्या उसका नुकसान है, मतलब इस तरीके से कुछ मतलब चीजें हैं। सो ये कई बार जो स्पान ऑफ कंट्रोल है इसका क्वेश्चन जो है, जो आपका 5 मार्क्स का जो छोटा क्वेश्चन आता है जो कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होता है, तो वहां पर ये आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज स्पान ऑफ कंट्रोल। सो ये एक पर्टिकुलर टाइप का है, तो उसमें आपको यही लिखना होता है कि स्पान ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, उसमें क्या बेनिफिट होता है। तो बेसिकली 2 तरीके का है। सो जैसे कि इसमें है ही, तो 1 स्लाइड ये है, 1 स्लाइड आगे वाली है, तो लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो स्पान ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो इसको थोड़ा हमें ध्यान से देखना है। सो वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल, it is one in which a manager can supervise and control effectively a large group of person at one time. तो एक ही साथ वो बहुत सारे लोगों को लाइक 10, 20, 50 लोगों को वो करता है। क्या क्या इसके बेनिफिट हैं? बेनिफिट ये है कि जब एक ही पर्सन इतने सारे लोगों को सुपरवाइज कर रहा है तो सबसे पहली चीज है जो सुपरविजन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरहेड जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेस ओवरहेड कॉस्ट। सो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज, अगर एक ही पर्सन के पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो वो जल्दी से पता चल जाएंगे। अगर डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं फिर वो एक जगह गैदर होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। बेटर कम्युनिकेशन, एक ही बंदा है उसको सिर्फ ऑर्डर देना है, जल्दी से पास होगा। नंबर ऑफ पर्सन अगर इन्वॉल्व है तो हर किसी को बताना पड़ेगा, हर कोई अपना अपना देगा। सुपरविजन प्रॉपर होगा इन ए मैनर कि कोई काम ऐसा हो तब, ठीक है, कि एक ही सिंगल पर्सन है, मतलब सिंगल विंडो इज ऑलवेज इजी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो तीनों चीजें हैं, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर सुपरविजन और बेटर कोऑर्डिनेशन, ये कहां पर होगी? जहां पर जो वर्क है वो रिपीटेटिव टास्क होगा, लाइक प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है, रिफाइनरी, अपने कुछ मतलब
एक ही एक चीज बार बार बनानी है, जैसे कि जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर प्रोडक्ट है, जो कि हम कह सकते हैं मास प्रोडक्शन वाली जो जगह है वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो मैनेजर है, अकॉर्डिंग टू दिस स्पान द वर्क एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड अमंगस्ट मैनी सबऑर्डिनेट्स and a manager doesn't supervise or control a very group of people under him। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिलेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एट ए टाइम पे वो वर्क करवाता है, मतलब 2 लोगों को देखता है, 3 लोगों को सुपरवाइज करता है। अब ये काम कहाँ आएगा, ये काम वहाँ आएगा जहां पर आपको बहुत बारीक काम है या कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क है, कोई मतलब प्रोजेक्ट है जिसके अंदर की एरर की जो गुंजाइश है वो ज्यादा है। So work which requires tight control and supervision, like in handicrafts, जो आपके ज्वेलरी पे जो वर्क होते हैं जिसमें कि क्राफ्ट्समैन जो है मान लो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या कोई इंडिविजुअल लाइक कोई पर्टिकुलर वर्क है, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ आती है। ठीक है, दिक्कत क्या है, कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट टू बी अचीव्ड। अब जब 2-2, 4-4 लोग कर रहे हैं, नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल आपने बना दिया है, तो पूरी कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने क्या कर रखा है, नंबर ऑफ मैनेजर बना रखे हैं कि हर 2 आदमी पे एक मैनेजर, हर 5 आदमी पे एक मैनेजर, तो मैनेजर ही इतने सारे हो गए, तो वो डिपार्टमेंट में अपने आप में कोऑर्डिनेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप्स कैन कम, अगर एक आध मैनेजर का भी वर्क नहीं हो पाया, उसके कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैसेजेस कैन बी डिस्टॉर्टेड, जितनी बार कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है, ये तो हमने सुना ही है, तो उसके अंदर कुछ ऐड ऑन होता जाता है, तो जैसे जैसे वो पहुंचता जाएगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क कैन बी अचीव्ड, जो वर्क है स्पेशलाइजेशन के अंदर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन हमने पहले भी देखा था, जो 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, उसके अंदर भी था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि आप एक चेन बनाते हो, आप देखते हो कि ये पर्सन अथॉरिटी है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप होती है। ठीक है, स्केलर चेन इज चेन ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी विच फॉलोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम with a chain of authority available, wastage of resources as minimized, communication proper होगा, overlapping of work is avoided। ठीक है, सो इसके अंदर दोनों चीजें मैंने बताई दी सेम है, जो अथॉरिटी है और जो कमांड्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो होती हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक पर्सन है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही जो कमांड्स हैं वो आनी चाहिए, ताकि वो जो एक टाइम पे एक ही उसका सीनियर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ 2 या 4 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज फॉर हिम। ठीक है, तो इट एम्प्लाइज वन सुबऑर्डिनेट वन सुपीरियर रिलेशनशिप, एक के साथ एक जो है, मतलब इसमें सबऑर्डिनेट है, सुपरवाइजर के नीचे तो हो सकते हैं ज्यादा लोग, पर जो एक सबऑर्डिनेटर है उसके लिए सिर्फ एक ही सुपरवाइज होना चाहिए। इसको हमें ऐसे नहीं लेना कि भाई एक जने का एक ही अथॉरिटी है, वो मतलब नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल जैसी चीज नहीं है ये। तो ये कम्युनिकेशन गैप को हटाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी हैं उसको इजीली हो जाता है। सो फाइनली हमें क्या मिलता है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट थिंग हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हम इसके अंदर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की जो एक कंपनी है वो पर्टिकुलर कितने तरीके से अपने आप को वो क्रिएट करती है। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो सर, जितने में आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं मैं उतने में सबसे एक बार बात कर लूँ, कुछ मतलब उनको बताना पड़ सकता है। क्या बताना है, बता दे। एक बार सारे सुन लेना, जो नहीं है वो भी सुन लेना, है ना। अब से ऋषि पाइक सर अपन को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण वो दिसंबर तक अपने कॉलेज नहीं है,
तो अब से या तो दयाल सर पढ़ाएंगे या फिर कोई और फैकल्टी अपन को पढ़ाएगी अब से। तो दयाल उसके सर ही बाद में अगर पढ़ाएंगे। तुम्हें फिर भी, हाँ सर, तो एक बार मैं बात कर लूँ सर प्लीज। तो अब तुम्हें को अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी होता है, तो ऋषि पाई सर को तुम मैसेज कर, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, या फिर कोई भी लिंक वगैरह लेना है या कोई भी पीडीएफ वगैरह या सिलेबस वगैरह कुछ भी पूछना है तो तुम उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और उनका मेल आईडी में तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, और नंबर तो सर के पास होंगे सर के, ठीक है। ओके सर का जी। आज होगी क्या क्लास? हाँ अभी होगी नहीं, अभी तुम्हारी कोई क्लास। क्लास नहीं, शायद तो दयाल तो सर अभी लेंगे आज क्लास। दयाल सर लेंगे शायद क्लास। जी सर। ठीक है, और मैं सारी पीपीटी इसको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। सारे पीपीटी और सारा मटेरियल मैंने दे दिया है, सो उसको पढ़ लेना। जो अपना 21 के अराउंड आप लोगों का मिड टर्म है, ठीक है। तो उसके अंदर मिड टर्म में क्या होगा, आपको जो ये हमारे पास, मैं आपको सिलेबस में बता देता हूँ क्या क्या आएगा लगभग। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सो ऑर्गेनाइजेशन तक का जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। बाकी जो भी हो जाएगा, जितना अभी तक जो करवा रहे हैं वो तो हम करवाएंगे ही। और एक चीज मैं तुम ही से पूछना चाहता हूँ, एक चीज का जवाब दो। हमारे पास एक यूनिट है, मैं तुम्हें शो करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कि हम उसको किस तरीके से करें। ठीक है, ये देखो इसके अंदर 6 जो यूनिट है इसको एक बार चेक करो। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, प्रेम जी, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। और इसी तरीके से किन्हीं 10 कंपनीज की प्रोफाइल बनानी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना है, उनकी स्ट्रक्चर है किस तरीके की होती है। लास्ट, preparing the leadership profile of any 5 business leader and studying their leadership quality। ठीक है, सबको दिख रहा है, ये पता चल रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीज है, एक तरीके से ये है आप लोगों का असाइनमेंट। मतलब एक तरीके से ये मानना है कि ये वाली जो चीज है वो आपसे सबमिट होनी है। तो इसका मतलब क्या ऐसा वे रखा जाए कि किस तरीके से तुम्हें लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग हो जाए। इसको मतलब बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जो लास्ट का एक साथ टाइम मिले उसके अंदर आप लोग इसको मैनेज बनाओ और फिर प्रेजेंट करो। या मान लो कि जैसे ये काम है, ये हर पर्सन को इतना ही बनाना पड़े, या इसको डिवाइड कर ले कि भाई जैसे 4-5 बच्चों का ग्रुप बना ले, वो किसी एक पर्टिकुलर जो बिजनेस लीडर है, जैसे कि अपन मान लो लगभग अपने पास कितने 50 स्टूडेंट हैं, तो हमें जैसे 5 लीडर्स का बनाना है, तो 5 लीडर्स का बनाना है, तो जैसे 5-5 के ग्रुप में 2-2 एक ही प्रोफाइल या मान लो बना दें, तो 5 की बजाय अगर 10 भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस लीडर्स का। और फिर उसको वो जो ग्रुप है उसमें से कोई एक बंदा प्रेजेंट कर दे, और ताकि दूसरे लोगों को समझ में आ जाए क्या बनाया है, और फिर वो सबके साथ शेयर हो जाए। तो ऐसा सही रहेगा, या मतलब ऐसा सही रहेगा कि जितना काम है वो हर कोई करे? सर ग्रुप वाला बेटर रहेगा। ग्रुप वाला बेटर रहेगा ना। तो फिर अपन ऐसा करेंगे कि बीच बीच में जैसे क्या करेंगे कि जैसे लगातार ये करते करते तो अपन मतलब जो थ्योरी चल रही है इसमें भी अपन बोर हो जाते हैं, थ्योरी तो इतनी पढ़ी नहीं जाती। तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि एक बार फर्स्ट मिड टर्म के तक तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अगर मिड टर्म के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें ईच ग्रुप को 1 वीक का टाइम दे देंगे। तो वो जैसे एक किसी बिजनेस लीडर का, एक कंपनी का अगर कोई प्रोफाइल बन जाए तो उसको बीच बीच में वो प्रेजेंट कर देगा। थोड़ी देर अपन थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे 30 to 40 मिनट, और 10-20 मिनट्स में वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से कर लेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना, आजकल जो क्लासेज है वो रिकॉर्ड होती हैं, तो अगर हम लोग इधर उधर कहीं हो जाते हैं तो बीच में अपना इनपुट ना दिया करो, जो बातें हैं वो एक्सटर्नल अपना कर लिया करो। ओके ओके सर। ओके सर।